Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. Today in this lecture we will study reasons for the low agricultural production and second reforms made to increase agricultural productivity. So let's start the topic with reasons for low agricultural production. See, agriculture is the backbone of Indian economy. Agriculture provides food grains to feed its population. Also, agriculture provides huge employment in private sector. Before 1965, India did not have enough food grains to feed its population. But after 1965, because of Green Revolution, many structural changes were occurred in agricultural system. Therefore, the productivity increased. But despite these changes, at the present time, there are many reasons for the low agricultural productivity in India, and we will study these reasons one by one. Here we can categorize the reasons as a technical reasons, economical reasons, institutional reasons, natural reasons and general reasons. Right? Here you need to remember a question can be asked using write down the economical reasons for the low agricultural productions, or a 5-marker question can be asked state the natural reasons for the low agricultural productions. So 5-marker question can be asked on technical reasons, on institutional reasons, or 11-marker question can be asked the overall reasons for the low agricultural productions. So here we will study one by one. Let's see first technical reasons, right? So technical reasons for the low production in agriculture are: first is lack of modern agricultural inputs like seed and fertilizers. You need to remember here that the land holdings, or we can say that the land area, are constant, right? To increase the productivity or income of farmer, we cannot increase the land area, but we can increase the inputs. Like if we will use high yield variety seeds, good fertilizers, then mechanization, then definitely the productivity of agriculture can be improved. So here the first technical reason for the low production is lack of modern agricultural inputs like seeds and fertilizers. Second, lack of technology in irrigation. Right? In India, the irrigation is done through, we can say that, canal, or we can say that tube well, right? But the modern irrigation facilities like sprinklers and drip irrigation, these are not being used in the agriculture, and because of this we cannot irrigate a maximum area. For an example, that we have limited water, and because of the limited water we are unable to irrigate a large area because of the old or conventional irrigation methods. If the new like sprinkler and drip irrigation, these methods will be improved, then definitely using less amount of water we will be able to irrigate the maximum part of the land, right? Third thing is that not enough control of insects, right? And as a fact, 16% food grains of India are destroyed because of the attack of insects, and for that we need to use the pesticides, right? Here you need to remember that in many village areas the farmers do not use the pesticides to control the insects. Fourth, traditional approach in agricultural, traditional irrigation methods and traditional machines like plough, जो है फावड़ा है, गेती है और जो हल है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और इन मेथड की वजह से we cannot improve the productivity.
एंड फिफ्थ, नो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, राइट। आधुनिक मशीनें, जैसे अगर आपको पता है कहीं पर अगर भूमि जो है द लैंड एरिया इज नॉट लेवल, then it can be leveled by land levelers, right? Harvesters, land levelers, reapers, these machines can be used in agriculture to improve the productivity. So these were the technical reasons which were responsible for the low production in agriculture. So now we will study the second reason, economical reasons, and first is indebtedness. See, in India, maximum farmers are small and marginal farmers, and they do not have enough money to invest, to purchase seed, to purchase fertilizer and pesticides, and because of that they had to take the money from landlords, or we can say that intermediaries like jamidar or bicholiya at very high interest rate, right? And because of that they have to pay a huge amount of money in return, right? Therefore when they take money from the landlords and they pay the huge rent, they enter into vicious cycle, and that leads to indebtedness, राइट। तो महंगे दर पर जब ब्याज लेते हैं उसको नहीं चुका पाते हैं या अधिक मात्रा में चुकाते हैं, ये एक साइकिल जो है वो ऋणग्रस्तता को बढ़ाती है, राइट। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। सी, व्हेन द कॉस्ट ऑफ सीड्स, fertilizer, pesticide increases, then the production cost of a particular crop also increases. So because of the new, or we can say that modern seed, fertilizers, pesticides, the production cost is also increasing day by day, and that is leading to the not enough investment in the agriculture, right? Third, faulty marketing practices, and fourth, failure to buy on MSP, right? As government promises to purchase the food grains on MSP, but despite this, now this time we can say that government is purchasing only wheat and rice, and rest of the crops are not being purchased on the MSP, right? Therefore the farmers are not getting enough money in return. And lack of finance, here we can say that lack of finance and lack of formality, these are the, see, lack of finance, there is a जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो किसान है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादातर जो है लोन के रूप में पैसा लेते हैं, इसीलिए उनके पास में जो है वित्तीय संस्थान जैसे बैंक से उनसे वो ऋण लेने में काफ़ी काफ़ी समस्याएं होती हैं, और जो ऋण की समस्या होती है उसकी वजह से भी जो है वो इन्वेस्ट नहीं करवाते, और इन्वेस्ट ना होने पर जो उत्पादकता है वो कम होती है। वैसे जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें भी यहाँ पर हो जाएगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अगर आप देखें तो भारत में जो जितने भी छोटे एवं सीमांत किसान होते हैं उनके पास में एक तो वित्त की समस्या होती है, और इसी से जो है वो मार्केटिंग फॉल्टी मार्केटिंग होती है। कैसे, आप समझिए, जब एक किसान को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं मेरे जो फूड ग्रेन हो इसको फ्यूचर में अगर सेल करूंगा तो मुझे अच्छी खासी इनकम होगी। जैसे ही उसकी क्रॉप या जो फसल है वो तैयार होती है, वो तुरंत के तुरंत अपने नियर बाय एरिया में ही उस पूरे के पूरे प्रोड्यूस को सेल कर देता है। मतलब उसे अपनी फसल की मार्केटिंग करनी चाहिए। हो सकता है कि उसको दूसरे किसी मंडी में या दूसरे क्षेत्र में उसको अच्छा खासा दाम मिले, लेकिन वो कई समस्याओं की वजह से, जैसे एक तो जानकारी का न होना या उसको धन की नितांत आवश्यक होना, इसकी वजह से वो मार्केटिंग नहीं कर पाता है और कम दाम पर ही अपनी फसल को बेच देता है, राइट। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल रीजंस, राइट, एंड फर्स्ट थिंग इज दैट स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, right? I already told you that
as and when the population increases, the property is divided in heirs and land holdings are getting smaller and smaller। और सीधी सी बात है, जितनी छोटी लैंड होल्डिंग होगी उतना ही हम उसमें मशीनीकरण के लिए निवेश कम कर पाएंगे, और अगर मशीनीकरण कम होगा या निवेश कम होगा तो डेफिनेटली that will lead to the low production in agriculture. So small land holdings, right? Second, tenancy system. Here you can see that this is a particular area and one person is who is the owner of this land, and this will be landlord, and second that tenant, right? टेनेंट फार्मर। हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट जो टेनेंट फार्मर है उसका मोटिव केवल और केवल इतना है कि वो इस खेत से प्रत्येक साल या जिस भी वो वर्ष में है ये अधिक से अधिक फायदा लेना चाहता है। तो जो टेनेंट फार्मर है ही वांट्स टू टेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट, देयरफॉर ही विल फोकस ऑन हाउ टू प्रोड्यूस मोर एंड ही हैज टू take the money from him, therefore both of them want to take a huge money but does not want to invest in this field। दोनों को मतलब पैसे से है, और दोनों जो है भूस्वामी और जो काश्तकार है या टेनेंट फार्मर है वो भूमि पर निवेश नहीं करते हैं, और when the money is not invested in लैंड एरिया सो धीरे धीरे जो है वो भूमि डिग्रेडेशन की ओर बढ़ती चली जाएगी, उसकी जो है प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, दैट विल लीड्स टू लो प्रोडक्शन। नेक्स्ट, रोल ऑफ मीडिएटर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में कई बिचौलिए होते हैं जिनसे हाई रेट पर लोन लिया जाता है और उसकी वजह से इंडेप्टनेस बढ़ती है और इसकी वजह से फिर निवेश भी कम होता है, दैट लीड्स टू द लो प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर। नाउ नेचुरल causes, as you know that first thing is that erosion, because of the land erosion the productivity decreases, right? And here we can see also land degradation। So because of land degradation and soil erosion the productivity also decreases day by day। Second is sudden outbreaks, राइट? जब फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है उस समय पे मे भी फ्लड आ जाती है या स्टॉर्म आ जाते हैं या साइक्लोन हो जाता है या फिर जो है इंसेक्ट अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से द क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय दीज थिंग्स। थर्ड, क्लाइमेट चेंजेस, राइट? अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स एंड दैट विल रिजल्ट इनटू low production। Fifth, common and general causes। Here see, first thing is that in general sense it is also we can say that land holding problems। See, in India many people engage in agricultural activity and when the population increases the land holding divided and which leads to the लैंड होल्डिंग्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जितनी छोटी कृषि जोत होगी या लैंड स्मॉल होंगी उतना ही उसमें निवेश कम होगा, हेंस द प्रोडक्टिविटी विल बी लो। सेकेंड, लैक ऑफ रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, दिस प्लेस अ ह्यूज इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। सी, there are many farmers who are illiterate and they do not have any information regarding the irrigation method, the fertilizer and the pesticides and the machine which to use and when to use। So the lack of information and because of lack of research and development जो है कृषि में नए इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं हो पाता है and that leads to low production, right? Next, farmers fatalistics and superstitious, right? इन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो फार्मर है उसको मशीनों में या फिर पहले से ही जैसे
अगर हो गया जैसे ये कि अपने जो खेत है उनकी बाउंड्री कर देना चाहिए, राइट, या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए, बट वो जो किसान है वो अंधविश्वासी होते हैं, पूजा पाठ कर दिया या फिर कुछ भी तंत्र मंत्र की विद्याओं द्वारा वो चाहते हैं कि उनकी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे या उसकी उत्पादकता बढ़ जाए, बट इट इज़ अनसाइंटिफिक इन दीज थिंग्स। जो फार्मर है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको पेस्टिसाइड्स हैं, उर्वरक हैं, या जो है अपनी भूमि है उसकी फेंसिंग कराना चाहिए, दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट बाय द पॉलिसी मेकर्स, राइट। यहां पर बिकॉज ऑफ लैक इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, वो या तो कृषि को इग्नोर कर देते हैं या एक तरीके से सिस्टमेटिक पॉलिसी बना ही नहीं पाते हैं। अगर कृषि में जितनी भी कमियां हैं, जो भी वीकनेस हैं, उनको दूर करने के लिए जैसे स्टोरेज जो है, स्टोरेज बनाना चाहिए, राइट, ताकि जो भी क्रॉप्स है, जो सरप्लस है हमारे पास, हम उनको भविष्य के लिए उनको स्टोर कर सकें, राइट। जो नई नई इरिगेशन मेथड है उनके बारे में किसानों को जागरूकता, एक तरीके से जानकारी देना चाहिए, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स हैं और जितनी भी जो पेस्टिसाइड्स हैं, गवर्नमेंट शुड मेक द फार्मर्स अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड मेक अ प्रॉपर पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट, lack of storage and investment. There is a huge gap in the storage, right? भारत में जितना भी उत्पादन होता है सरकार उसको प्रोक्योर तो कर लेती है, लेकिन कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि वर्षा के समय वो अनाज जो है वो सड़ जाता है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ हाई लेवल ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। एंड इसके लिए गवर्नमेंट को जगह जगह पर एट अ स्टेट लेवल, एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, द कोल्ड स्टोरेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड, राइट, और प्रोवाइडेड सो दैट द फूड ग्रेन्स कैन बी procured safely, right? Next, yes, so these were the reasons because of that there was a low productivity in agriculture. So these were the 5 reasons, and I have made you understand in different dimensions. So when the question will be asked, you need to make a 5 point and you need to write an answer with different dimensions, right? So now we will study reforms made to increase the agricultural productivity. As you know that before 1965 or before Green Revolution, India did not have enough food grains. But after the Green Revolution, many structural changes were occurred in Indian agriculture system. Therefore, the production increased manifold. But despite this, there are many problems which are hindering the balanced development and growth of the agriculture. If we adopt new technology, new machinery and high yield variety seeds, then definitely the productivity in agricultural field will be improved at a world level. So we will study here how or when the reforms made to increase the agricultural productivity, and we will see one by one at a technical level, institutional, generals, and what are the current reforms like agricultural reform acts and agricultural policies, right? Here we will see these technical, institutional and general. These are the conventional reforms which were made in the agricultural sector, but as and when time is passing, the government is introducing new reforms, and in the form of agricultural reforms acts as unit in 2020, the 3 acts were enacted by the government of India. Also every year government launches a new agricultural policies to improve the productivity, right? So the policies and the agricultural reforms acts will be taught by me in upcoming lectures, and today we will focus on the technical reforms, institutional reforms and general reforms, right? So let's start with the technical reforms. First, use of high yield
variety seeds. As I told you that before green revolution we used conventional seeds, and because of that there was a low productivity, but in green revolution the high yield variety seeds were developed by the scientists of Indians, right? So the high yield variety seeds were developed in the green revolution. Also the establishments of seed banks in 1963. So the national seed banks was established in 1963 so that the high yield variety seed could be stored, could be distributed, and could be safely procured, right? After that, at present the development of seed village concept is going on, right? ये कंसेप्ट क्या होता है? इन एवरी विलेज ग्रुप ऑफ 8 to 10 farmers, right? Government of India, or we can say that the Ministry of Agriculture is providing training to the village people so that they could develop themselves, they could develop the skills how to and how the seeds can be produced and stored so that the needs in the village could be satisfied. ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 से 10 लोगों का ग्रुप होगा वो सीड के उत्पादन में, उनके भंडारण में मदद करेगा, उसकी ट्रेनिंग कृषि मंत्रालय देगा ताकि जो ग्रामीण लेवल है वहाँ पर जो है बीजों की आपूर्ति हो सके। और इसके लिए ही जो विलेज जो है बीज गांव है इसका कंसेप्ट लाया गया है, राइट? नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ सीड बैंक्स एट डिफरेंट स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि जो जिले हैं या राज्य स्तर पर है बीजों की आपूर्ति भरपूर हो सके, राइट? आल्सो द सीड एक्ट 1966 वुड बी रिप्लेस्ड बाय 2019। देखिए बीजों का जो है वितरण, बीजों की कीमत और बीजों की भंडारण को लेकर जो समस्याएं सीड एक्ट 1966 में थी, दैट विल बी इम्प्रूव्ड इन सीड विल 2019 एंड द सीड विल 2019 इज इन ड्राफ्ट स्टेज, राइट? अभी इसको लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से परमिशन की आवश्यकता होगी, राइट? सो इन द एग्जाम वी कैन कोट this fact only: the seed act will be replaced by the seed will 2019, which will improve the storage, the distribution of seeds in national level, right? Next, so the first technological improvement was made in the field of high yield variety, and second, use of fertilizers, right? Vermicompost, right? So to improve the productivity in India, the fertilizers were used, right? Also the neem coated urea were used, right? यहाँ पर आपको इसकी विशेषता समझना है। देखिए जब गवर्नमेंट ने कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया। और आपको पता है कि चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या पोटेशियम हो, इन सब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इन पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट यूरिया पर भी सब्सिडी देती है। जो गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज्ड यूरिया होता है इसकी जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से जो सब्सिडाइज्ड यूरिया होता है उसको नेपाल एवं बांग्लादेश में स्मगल किया जाता है। आल्सो द सब्सिडाइज्ड यूरिया इज यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर जिन किसानों के पास में सब्सिडाइज्ड यूरिया होना चाहिए उनके पास में वो यूरिया पहुंच नहीं पाता है, और उसकी जगह पर जो यूरिया है वो बांग्लादेश, नेपाल या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज में पहुंच जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली और वो ये थी कि गवर्नमेंट ने आदेश दिए कि जो यूरिया है फर्टिलाइजर कंपनियों से कहा कि आपको यूरिया को नीम से कोट करना पड़ेगा, और जब नीम कोटेड यूरिया, जो नीम की पत्तियां हैं उनको जब यूरिया पर चढ़ाया जाता है तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो नीम कोटेड यूरिया है या नीम लेपित यूरिया है वो
उसका प्रयोग दूसरी इंडस्ट्रीज में नहीं हो पाएगा, और दूसरी चीज ना ही उसका नेपाल या बांग्लादेश जैसे देशों में स्मगलिंग हो पाएगी। इसीलिए ये नीम कोटेड जो यूरिया है उसको प्रचलन में लाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी द फर्टिलाइजर्स वर प्रोवाइडेड एट subsidy were provided in fertilizers. After that government is encouraging farmers to use vermicompost, right, ताकि जो मृदा स्वास्थ्य है या सॉइल हेल्थ है वो अच्छा रहे। इसके साथ ही नीम कोटेड यूरिया इज आल्सो प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, राइट, जो किसान है जिनके पास में लैक ऑफ कैपिटल है, सरकार उनको सब्सिडी दे रही है सो दैट they could purchase the new machines in agriculture because means using this subsidy, right। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लेवल पर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का उपलब्ध कराए गवर्नमेंट ने, फर्टिलाइजर्स सब्सिडी पर फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कराए, और सब्सिडी पर ही गवर्नमेंट जो है वो मशीन खरीदने के लिए भी जो है किसानों को इनकरेज कर रही है। आल्सो Now second thing is that scientific method, right, अगर हम कृषि में if the scientific methods are used in the agriculture then definitely the productivity will increase. The first is that crop rotation, right। What is the crop rotation? Here when the farmer sows one particular crop at a regular interval then definitely the nutrients of the soil will be decreased. So to improve the nutrients of the soil a particular crop should be produced one after second। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसान जो है वो गेहूं के बाद में, जैसे गेहूं का जब फसल उगाएगी मतलब जब वीट विल बी प्रोड्यूस्ड तो जो है मृदा के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, नाइट्रोजन में कमी हो जाएगी, राइट। इसीलिए अगर गेहूं के बाद में जैसे यहाँ पर जो मूंग है, राइट, या फिर जैसे मूंग हो जाएगा या ऐसी फसलें जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं लाइक पल्सेस, जो जितनी भी पल्सेस हैं अगर उनको बोया जाता है गेहूं के बाद में तो डेफिनेटली गेहूं की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई थी उनकी पूर्ति किससे हो जाएगी? पल्सों से हो जाएगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन का means the pulses fixes the nitrogen, therefore the soil health will be improved, therefore the farmer should use crop rotation method. Second, land preparation, it is also important, right, as you see that in India in many areas many parts of the country are not in level, जो कृषि के जब खेत होते हैं वो ऑन द हिल एरियाज, और वी कैन से दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इरिगेट दीज टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अगर हम मशीनों के माध्यम से इनका जो है इनको समतल कर देते हैं, लैंड लेवलर के माध्यम से हम इनको एक लेवल में ले आते हैं, तो इससे इट विल बी वेरी इजी टू इरिगेट दीज लैंड्स। सो देयरफॉर लैंड प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लेवल जो लैंड लेवल है वो भी किया जाना चाहिए, राइट। इसके साथ ही बिफोर द जो बुआई है उसके पहले भी इसमें हल जो है एक तरीके से जो है निचली मिट्टी जो लो लेवल ऑफ द सॉइल उसको हम एक तरीके से जैसे आपने सुना होगा प्लाव की मदद से जो है नीचे की मिट्टी को ऊपर लाया जाना चाहिए ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी ना हो पाए, राइट। तीसरा, क्रॉप वैरायटी सिलेक्शन, राइट, according to the nutrients found in the soil and according to climate of that particular region the crop varieties should be chosen, right, because in conventional method farmers use one particular crop at a regular time, but according to new methods the first the farmer should know what means which type of nutrients found in the soil, then the crop variety should be selected, right. Next, proper use of manure, right, fertilizers or vermicompost so that the nutrients of the soil could be improved, and proper use of pesticides to control the
insects, right? And next, registration system. This is the new system. As you know that the government procures the food crops on MSP through the registration system. So registration या जो पंजीयन सिस्टम होता है, इसकी वजह से जो है किसान जो है वो पहले ही पंजीयन करा लेता है, रजिस्ट्रेशन करा लेता है, और फिर उस किसान को SMS मिलता है जिसके माध्यम से वो उस नियत डेट पर अपनी फसल को बेच आता है, राइट? तो दीज वर द साइंटिफिक मेथड्स विच विल हेल्प टू इम्प्रूव द productivity, right? Next, and the most important is the institutional reforms, and this can be asked in the 11 marks the question. जो institutional reforms है वो 11 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, and we will deal one by one. The most important institutional reform is abolition of intermediaries, right? अगर आपको पता होगा तो स्वतंत्रता से पहले जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था या लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो था, उसकी वजह से जो जमींदार थे वो किसानों से लगान वसूलते थे. तो सबसे शुरू में तो द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, और वी कैन से दैट द मिडलमैन. इसकी वजह से क्या होगा कि जो किसान है वो अपनी फसल को मंडी में बेचकर अधिक से अधिक जो है इनकम प्राप्त कर पाएगा, राइट? अगर आप देखें तो जो इंटरमीडिएटरीज होते थे यही क्या होते थे, क्रेडिटर्स होते थे. अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो जो इंटरमीडिएटरीज या जिनको जमींदार कहा जाता है या बिचौलिए, यही फार्मर को एक तरीके से लोन उपलब्ध कराते थे, और जब किसान की जो फसल तैयार हो जाती थी वो उसको सस्ते दामों पर ही क्या करते थे, खरीद लेते थे एट अ वेरी लो प्राइस. और इस वजह से जो इंटरमीडिएटरीज होते थे ये घर बैठे ही इनको बहुत अच्छा मुनाफा होता था, और जो किसान होता था उसको अपनी जो प्रोड्यूस है उसका वास्तविक इनकम नहीं मिल पाती थी. देयरफॉर द फर्स्ट एंड मोस्ट वाज द evolution of intermediaries, and it was introduced in Madras state in 1948, and till 1972 the evolution of intermediaries occurred in whole of India, right? और आपको पता होगा कि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, the first constitutional amendment was made in 1951, and with the first constitutional amendment the ninth schedule was added in our constitution, and there were land reforms in the ninth schedule, and इन्हीं लैंड रिफॉर्म्स की मदद से ही जो है जो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज इट हैपेंड, राइट? और 1972 तक जो है भारत से जो बिचौलियों की जमींदार की समस्या थी ये पूरी तरीके से समाप्त हो गई, राइट? सेकेंड वाज लैंड सीलिंग, राइट? थ्रू दीज लैंड रिफॉर्म्स द लैंड सीडिंग वाज डिसाइडेड. इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट whoever have the maximum limit means a particular citizen can have and can own a maximum limit of land area like 50 acre. अब किसी किसान के पास में अगर 50 एकड़ जमीन है तो वो अपने पास रख सकता है, बट इफ ही हैज मोर देन 50 एकड़ लैंड एरिया देन द सरप्लस लैंड एरिया विल बी ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फिर उस लैंड एरिया को एक तरीके से जो मजदूर हैं या जो वर्कर हैं उनको क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, राइट? और इस वजह से जो कृषि विहीन कृषक हैं, राइट, उनको क्या हो जाएगा, उनके पास में भी खेती योग्य भूमि पहुंच जाएगी. तो पहला हो जाएगा, पहला महत्वपूर्ण था एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, राइट? सेकेंड हो जाएगा लैंड सीलिंग, जिसकी वजह से एक अधिक सीमा से अधिक जो जितनी भी भूमि है वो गवर्नमेंट के माध्यम से जो है वर्कर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लैंड कंसोलिडेशन, राइट? collection of scattered land. As I told you that if a farmer has a 10 acre of land, right? अब अगर उसके पास में 10 एकड़ का खेत है, लेकिन समस्या ये है कि अगर वो
3 एकड़ कहीं पर है, 1.5 एकड़ कहीं पर है और 2.5 एकड़ कहीं है और बची हुई जो ज़मीन है वो कहीं और है। अगर उसकी लैंड होल्डिंग्स फ्रेगमेंटेड होगी तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर उसको स्टोरेज बनवाना है तो उसको स्टोरेज यहाँ 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 सब जगह स्टोरेज बनवाना पड़ेगा। सिंचाई के लिए अगर उसको ट्यूबवेल है या जो है वेल ट्यूबवेल का कंस्ट्रक्ट कराना है तो वो भी उसको 5 जगह कराना पड़ेगा, राइट। और उसको ह्यूज जो है वो मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। परंतु यदि उसके पास में 10 एकड़ का पूरा खेत है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू कंस्ट्रक्ट अ गोडाउन। वो वहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज भी बनवा सकता है, वहाँ पर ट्यूबवेल भी खुदवा सकता है, वहाँ पर जो है मशीनों का इस्तेमाल भी कर सकता है ताकि जो है खेती आसानी से की जा सके। तो यहाँ पर लैंड कंसोलिडेशन। तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट evolution of intermediaries, land ceiling and land consolidation. Next, tenancy reform by making a law. As I already told you that, right, यहाँ पर जो टेनेंसी है, जो काश्तकार नियम है, उनके बारे में आपको मैंने अभी बताया कि जैसे क्या होता है कि जो टेनेंट फार्मर होता है ही डज नॉट इन्वेस्ट इन द लैंड। जैसे ये खेत हो जाएगा तो यहाँ पर एक तरफ तो लैंडलॉर्ड हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, टेनेंट फार्मर हो जाएगा। एंड बोथ हैव द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। मींस जो टेनेंट फार्मर होता है वो पर्टिकुलर साल में ज़्यादा से ज़्यादा इस भूमि का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और उसको अपने फ़ायदे से मतलब होगा, और जो लैंडलॉर्ड होगा उसको भी पैसे से मतलब होगा। और ये दोनों मिलकर इस भूमि पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दे डू नॉट केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ द सॉइल एंड न्यू इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एरिया। तो जब दोनों जो है, ना ही जो है टेनेंट फार्मर और ना ही जो भूस्वामी, जब दोनों निवेश नहीं करेंगे तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम जो भूमि है वो डिग्रेड हो जाएगी, उसकी जो है प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगी, राइट। इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर नियम भी बना दिए हैं। अब जो नए नियम है उनके माध्यम से क्या होगा आप वो समझिए। नए नियम के माध्यम से एक तो जो टेनेंट फार्मर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बैंक से क्या ले सकेगा, लोन भी ले सकेगा। पहले क्या होता था कि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था तो जो टेनेंट फार्मर होता था उसको लोन भी नहीं मिलता था। लेकिन अब नियम बनाकर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से जो है वो बैंक से लोन भी ले सकता है, और जब वो बैंक से लोन लेगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से इन्वेस्ट भी करेगा और उस भूमि पर देख रेख भी करेगा, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट जो लैंडलॉर्ड है, अब जो टेनेंट फार्मर है वो अपना कब्जा जो है वो लैंडलॉर्ड जो भूमि है उस पर भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नियम के तहत जो लैंडलॉर्ड है उसकी भी भूमि सुरक्षित हो जाएगी, और जो एक तरीके से जो टेनेंट फार्मर है वो भी इन्वेस्ट करने के लिए भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और उसको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बैंक से लोन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से दीज वर द जो चारों थे, इन्होंने कृषि में एक तरीके से बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग, राइट। व्हाट हैपेंस इन कोऑपरेटिव फार्मिंग? हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन द लैंड होल्डिंग्स इज वेरी small, right, then many farmers can collect their land holdings and they can farm, means they can farming using the common resources, राइट। जितने भी किसान हैं उनके पास में जितनी भी भूमि है वो उसको कंसोलिडेट करके एक पूल बनाएंगे और उनके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं वो उन रिसोर्सेज का कॉमन इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो जो पूरी के पूरे जितनी भी लैंड होल्डिंग्स है उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, और इस खेती को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है, राइट। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड एरिया को पूल कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और यूजिंग कॉमन रिसोर्सेज दे कैन फार्मिंग, और डेफिनेटली द मतलब अगर कोऑपरेटिंग फार्मिंग होगी तो उससे प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी,
राइट। फिर जो क्रेडिट की समस्या थी उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, राइट। इन 1998 बाय नाबार्ड लॉन्च द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, राइट। And using Kisan credit card, the farmer can take loan and can invest in the agriculture, and in this way the productivity will be improved or increased. Next, establishment of agricultural development centers at a state level or at a district level, and these agricultural development centers will provide information regarding the soil health, and these centers will also provide means information about the monsoon inputs, pesticides and fertilizers, right. Next, the establishments of Food Corporation of India. Through this government of India procured the surplus food grains, right. नेक्स्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेस। अगर जो कोल्ड स्टोरेज है और जो वेयर हाउसेज हैं उनका निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है हम जो सरप्लस फूड ग्रेन्स है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये जो थे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के 11 यहाँ पर डायमेंशंस 10 डायमेंशंस हैं। अगर आप इसका एक इंट्रोडक्शन एक कंक्लूजन के साथ में इन 10 डायमेंशंस को लिखते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। नाउ वी विल सी द जनरल इंप्रूवमेंट्स और जनरल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी, राइट। फर्स्ट इज दैट एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। गवर्नमेंट ने आरआरबी, जैसे यहाँ पर लिखा है आरआरबी, नाबार्ड और जो आरआरबी, नाबार्ड और कई अन्य स्कीम के माध्यम से जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको एक्सटेंड किया है, उसको इम्प्रूव किया है, सो दैट द फार्मर्स कुड गेट इजीली लोन्स, राइट। नेक्स्ट, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज will give loan, fertilizers, pesticides at a very grassroots level। जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं वो एक तरीके से विपणन में लोन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स उनकी खरीदी बिक्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, राइट। उसके बाद में रेगुलर एंड इंटीग्रेट मार्केट सिस्टम, and through this the farmers could sell their produce, right। वर्तमान समय में आपने सुना होगा कि ई नाम पॉलिसी, यहाँ पर जो है किसान पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी अपनी जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकता है, और जब उसके पास में कई बड़े क्षेत्र में अपनी सेल को प्रोड्यूस करने का मौका होगा तो डेफिनेटली ही कैन सेल एट अ हायर लेवल, राइट। नेक्स्ट, बेटर मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो थ्रू ई नाम जो पोर्टल हो जाएगा या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ई नाम प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ दिस द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट। एंड नेक्स्ट, government is procuring food grains on MSP and the price support policy is regulated by the government, right। और यहाँ पर हो क्या रहा था कि देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो इंटरमीडिएटरी होते थे, राइट, जमींदार, वो क्या करते थे, किसानों की जो जितनी भी फार्मर्स की जो प्रोड्यूस होती थी वो सीधा इन बिचौलियों या जमींदार के द्वारा इनको खरीद लिया जाता था कम दाम पर। इसके लिए गवर्नमेंट ने APMC मंडी एक्ट लेके आए कि किसान सबसे पहले अपने अनाज को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC में ही क्या करेगा, बेचेगा, ताकि उसको अच्छा क्या मिले, रेम्यूनरेटिव प्राइस, या उसको हाई रेट पर वो अपने प्रोड्यूस को बेच सके। लेकिन इस APMC में काफ़ी लंबे समय बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और वो था कार्टेलिंग ऑफ द ट्रेडर्स। यहाँ पर जो मंडी में जो जितने भी व्यापारी होते थे उन्होंने अपना एक गुट बना लिया, और गुट बनाने के साथ ही वो सभी किसानों की जो प्रोड्यूस होती थी उसको बहुत लो लेवल पर क्या करते थे, खरीदते थे।
अब जैसे सभी किसानों को इस मंडी में लेके आना, इस मंडी में जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने घर पे बैठ के पूरा डिसाइड कर लिया कि गेहूं को हम इतने रेट से ज़्यादा जो है या 1500 से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है जो जितने भी किसान हैं वो मजबूर होते थे अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है, इनाम पर प्लेटफॉर्म लेके आई है कि अगर आपको एक मंडी में अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो एट ऑल इंडिया लेवल यू कैन सेल योर प्रोड्यूस एट अ नेशनल लेवल। जहां पर भी आपको अच्छा रेट मिलेगा वहां पर आप आपके प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, राइट। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने दूसरी चीज लेके आई, वो क्या लेके आई है, एमएसपी। अगर जो व्यापारियों का समूह है वो एक निर्धारित लेवल पर आपको अगर आपकी जो प्रोड्यूस है उसको नहीं खरीद रहा है तो गवर्नमेंट विल प्रोक्यूर द फूड ग्रेन्स ऑन एमएसपी। मतलब एमएसपी के माध्यम से सरकार ने सभी फसलें जो जितनी भी जैसे वर्तमान समय में 22 फसलें और गन्ना के लिए जो एफआरपी जारी की जाती है उसके लिए जो है सरकार ने 22 फसलों के लिए जैसे एमएसपी जारी कर दिया, तो उस रेट से नीचे अगर कोई भी व्यापारी खरीदेगा तो किसान वहां पर नहीं बेचेगा, वो सीधा सीधा किसको बेच देगा, उस रेट पर सरकार को बेच देगा, अर्थात सरकार उस रेट पर खरीदेगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एमएसपी सिस्टम ने भी इंप्रूव किया। और फिर एस्टेब्लिशमेंट आरआरबी और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नाबार्ड, राइट। अगले हो जाएंगे यहाँ पर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एक्ट, राइट, और एग्रीकल्चरल रिलेटेड स्कीम। ये करंट का पोर्शन है। तो इन द जो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, जैसे आपको पता होगा कि 2020 में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 3 एग्रीकल्चरल एक्ट्स वर इनेक्टेड इन 2020। अब हम एक लेक्चर में पूरा का पूरा, दरअसल हमारे लेक्चर में जो है हमारे सिलेबस में है द इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एक्ट्स हैं वो क्या है, इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट है। देयरफॉर वी नीड टू स्टडी दीज रिफॉर्म्स एक्ट्स इन वेरी डिटेल। सो इन फोर्थ डेज in next lecture we will study about the 3 agricultural bills। ये करंट के मुद्दे हैं और जो योजनाएं भी चाहे वो इरिगेशन से संबंधित हो, फर्टिलाइजर से संबंधित हो, पेस्टिसाइड से संबंधित हो, दोनों का संबंध करंट अफेयर से भी है और जो सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए उनसे भी है। इसीलिए यहाँ से है हो सकता है कि जो फॉर्मूलास हैं उनसे 11 नंबर का क्वेश्चन बन जाए या किसी स्कीम से। देयरफॉर वी विल स्टडी द 3 एग्रीकल्चरल एक्ट्स इन डिटेल, आल्सो द न्यू एग्रीकल्चरल स्कीम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो इन दिस वे हमने यहाँ पर देखा कि जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए, राइट। नाउ वी विल सी द मॉडल क्वेश्चन। जो जितने भी टॉपिक हैं हमने वो पढ़े हैं। जैसे फर्स्ट हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल कॉजेज ऑफ लॉ प्रोडक्शन, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप 3 पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर व्हाट आर द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फिर लैंड कंसोलिडेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, राइट। I have explained these things, so you need to write the answer at own, right, so that you could improve and you could practice more. Next, discuss the institutional reforms for the increasing agricultural production। और मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है ये 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी, राइट। नेक्स्ट, थ्रो लाइट ऑन द कॉमन कॉजेज फॉर द लो प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। जो कॉमन काज है वो कौन कौन से हैं वो बताइए। फिर 11 नंबर में भी एक और क्वेश्चन है, मेजर चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर की जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में आपको बताना। फिर नेक्स्ट 11 नंबर में स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स के जितने भी डायमेंशंस हैं वो, और उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है। फिर डिस्कस द रीजंस फॉर लो प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, ये पूरा का पूरा टॉपिक बढ़ाया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हाउ कैन प्रोडक्शन बी इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन एंड, तो ये जो है ये हमारा जो है आज का दूसरा जो टॉपिक पढ़ा था
उसके इस्तेमाल करते हुए आप विभिन्न डायमेंशन से इसका उत्तर लिख सकते हैं। और डिस्कस द मेजर चैलेंजेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। तो इन दिस वे हमने यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो है ये 4 टॉपिक से लिए गए हैं, राइट। फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, फिर चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फिर रीजंस फॉर द लो प्रोडक्शन, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रिफॉर्म्स मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी दिया है। और हियर आर द मॉडल क्वेश्चंस यू शुड राइट एंड यू शुड प्रैक्टिस so that you could improve your writing skills. So in the next lecture we will meet with the new lecture. Till then, thank you.